Now we talk of the capacitors. This is the next in the series lecture. It's a capacitor. What is a capacitor? Why it should be used? What are the basic factors? So now this first lecture is about the basics of capacitor. This capacitor is a device which is used to store energy in the form of electrical field. It stores electrical energy. How does it store? Let's understand the principle. Supposing there is a plate which is shown over here. It has got neutral plate over here. I bring charge to it. When I bring the first charge, I have to do no work because there is no repulsive force. But when I bring the second charge, there is some repulsive force, so I have to do some work. Similarly, as I keep on increasing more charge, every next charge would incur more work because there is a more repulsive force. I have to do more work. That simply means the potential of the plate is increased. That's why mathematically we can say the Q is proportional to V, where Q means the charge already present in the plate. When more charge is already placed in the plate, the potential of the plate is increased. We get Q proportional to V. So we place a proportionality constant, which is Q equal to CV, and then we get C. The capacitance is Coulomb per volt. That is the charge to potential ratio. In layman's language, desi language में it's a capacity to store energy, but technically it is Q by V. That means the ratio of charge to potential. The unit of capacitance is 1 farad. That is 1 coulomb per volt. We can say that if 1 coulomb of charge raises the potential of the plates of capacitor by 1 volt, then the capacitance is said to be 1 farad. This can be stated technically. Now, let's try to find out the potential of a sphere. Sphere आपके सामने है, इसका रेडियस R है, इसको आपने चार्ज Q दिया, इसका पोटेंशियल बन जाएगा V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. But whatever is Q by V is going to be the capacitance. So Q by V is 4 pi epsilon naught R, which is equal to C. So the basic principle is give some charge, find potential, find the ratio of Q by V. नेक्स्ट स्टेज पे इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ये तो कैपेसिटर हुआ जो चार्ज स्टोर करता है. इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसको समझिए. मेरे पास एक प्लेट है जिसमें कुछ चार्ज मैंने पॉजिटिव लगा दिया. फर्दर इसका कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है और अब मैं अगला चार्ज इस पर नहीं ला सकता. अगर आप फोर्स वाइज समझे तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है नेक्स्ट चार्ज लाने के लिए, और अगर आप पोटेंशियल वाइज समझे उसका पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो चुका है. व्हाट आई डू नेक्स्ट? आई गेट अनदर प्लेट. ये मैंने न्यूट्रल प्लेट वहां रख दी. इस न्यूट्रल प्लेट के रखने से होगा क्या? ये जो कंडक्टर प्लेट है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के पास डेवलप हो गया, आप देखिए, और पॉजिटिव चार्ज उसके दूर डेवलप हो गया. अब मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव उस प्लेट में, इस प्लेट में डेवलप हो चुका है, जबकि इस प्लेट में पहले से चार्ज था. ये न्यूट्रल प्लेट है. अब क्या, इसके बाद आपने दूसरे फॉर्म में देखिए, अब ये कैपेसिटी की प्लेट थोड़ी बदल गई. जैसी पॉजिटिव नेगेटिव लगे, मैंने इस प्लेट के ऊपर राइट साइड पर यहां पर इसको ग्राउंड लगा दिया. अब होगा क्या? ग्राउंड होने की वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर भाग जाएगा. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट्स के ऊपर कुछ चार्ज रहेगा. अब पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींच रखा है, नेगेटिव ने पॉजिटिव को खींच रखा है. अब अगर मैं इस प्लेट को यहां पर कट कर देता हूं, इस ग्राउंडिंग को, तो यहां पर और यहां पर दोनों जगह चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव रह जाएगा. Whenever a neutral conductor is placed near a charged conductor, its capacitance increases. ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने इस प्लेट को रखा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया. तो अब आप इसमें और चार्ज रख सकते हैं. यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है. We can say every practical capacitor has two plates carrying equivalent opposite charges, hence net charge is 0. किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कोई भी कैपेसिटर होगा, उसमें दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को लेकर चलेगा, और नेट चार्ज हमेशा 0 होता है. ये हम आगे डेरिवेशन में भी करेंगे. कैपेसिटर की टाइप्स कैसे बताई जा सकती है? कैपेसिटर का जो नाम है, नोमेनक्लेचर है, वो दो टाइप से हो सकता है. एक तो ज्योमेट्रिकल शेप पर होता है, इसका नाम जिस जो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज आपने रखना है वो किस टाइप की है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये सब उनके नाम होते हैं. दूसरा, ये जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में क्या मटेरियल रखा है, इसमें आप एयर कैपेसिटर होता है, सेरेमिक कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है. ये कैपेसिटर का उस तरह से नाम
रखा जाता है। बट किसी जगह की कैपेसिटेंस निकालने का मेन प्रिंसिपल याद रखिए, आप पहले पोटेंशियल निकालिए ड्यू टू द चार्ज, और उसके बाद चार्ज बाय पोटेंशियल कर दीजिए। जो भी आपने मैथमेटिकली भी देखा, Q बाय V का ही नाम कैपेसिटेंस है। जो कुछ भी हमें मिलेगा वो कैपेसिटेंस होगा। अब आप इसको आगे समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे, 2-3 डेरिवेशन करेंगे इसके जो हमारे सिलेबस में, और हमको इस बात को समझने में और आसानी देंगे। थैंक यू।